Today we will take practical problems on union and intersection. First, number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. इसे प्रूफ करते हैं पहले. Let number of elements common in both A and B are k. That means A intersection B में k elements common है. And number of elements in set A are A plus k. This implies only A contains A element. That means number of elements in only A is A. That means number of elements in A minus B is A. Or we can say that A intersection B dash is equal to A. A intersection B dash is equal to A minus B. And let number of elements in B are B plus K. K plus B. B में element हो गए. So this implies number of elements in only B are B. That means number of elements in B minus A is B. That means number of elements in B intersection A dash is B. Now, number of elements in A union B is equal to A plus B plus K. A plus B plus K. Arranging this as A plus K plus B और इसमें K ऐड किया तो K सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. तो A plus K नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हो गया, B plus K नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B हो गया और ये K नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन A एंड B हो गया. इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B. A particular condition: if A and B are disjoint sets, then number of elements in A union B will be number of elements in A plus number of elements in B. If A and B are disjoint sets, that means A intersection B is 5. That means A and B have no common elements. And in this case, number of elements in A intersection B will be 0. Since number of elements in A union B is equal to NA plus NB minus N intersection A intersection B, therefore NA plus NB minus NA intersection B will be 0. And this becomes NA plus NB is equal to NA union B. तो अगर A और B डिसजॉइंट सेट हैं तो NA union B is equal to NA plus NB होगा. Second, number of elements in A union B union C is equal to NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus NC intersection A plus NA intersection B intersection C. इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेट करते हैं कि A, B, C तीनों में कॉमन K है. That means तीनों में कॉमन ये पोर्शन है और इसमें K एलिमेंट्स हैं. A, B में कॉमन जो C में ना हो, C डैश A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश A और B में कॉमन जो C में ना हो. That means ये इतना पोर्शन, इस पोर्शन में एलिमेंट्स P लिए हैं. फिर B और C में कॉमन जो A में ना हो, B और C में कॉमन जो A में ना हो. डेट मीन्स इस पोर्शन में Q एलिमेंट है, Q एलिमेंट्स है.
देन C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B डैश, C और A में कॉमन जो B में ना हो, डेट मीन्स ये एलिमेंट्स R हैं। ओनली A, तो सिर्फ A, ये इतना पार्ट है, इसमें A एलिमेंट, ओनली B में B एलिमेंट, ओनली C में C एलिमेंट्स, ये हो गए। तो इससे हमें दिखता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A are A plus P plus R plus K. Number of elements in B is equal to B plus P plus Q plus R. Number of elements in C is equal to C plus Q plus R plus K. C plus Q plus R plus K. तो अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए लेते हैं। Now number of elements in A union B union C is equal to, क्या दिख रहा है, A plus B plus C plus P plus Q plus R. A plus B plus C plus P plus Q plus R और फिर प्लस कॉमन इन ऑल थ्री। इसे रीअरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू these conditions. A plus P plus R plus K, ये एलिमेंट्स लिख लिए और ये हो गया PA। अब B प्लस P, अब P नहीं है इसमें, ये P ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो जब P ऐड करेंगे तो P सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। Q प्लस K, K लिख चुके हैं, अब K बनाने के लिए K ऐड करेंगे तो K सब्ट्रैक्ट करना होगा। PC, NC, NC लाने के लिए C यहां है, प्लस Q, Q यहां से लिखा जा चुका है, तो प्लस Q तो माइनस Q, प्लस R, R ये भी लिख चुके हैं, तो प्लस R, बैलेंस करने के लिए माइनस R, प्लस K, तो फिर से एक बार माइनस K। ये हो गया NA, दिस इज NB, दिस इज NC। अब इन दो में माइनस कॉमन लेंगे तो ये P प्लस K, Q और K में माइनस कॉमन लेंगे तो Q प्लस K माइनस ये R, इस R में एक K और सब्ट्रैक्ट करके K ऐड करेंगे तो R प्लस K और ये प्लस K अलग से, ये R माइनस का, ये K माइनस का, माइनस कॉमन लिया तो R प्लस K। तो अब हमारे पास बच गया NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B, P प्लस K, P प्लस K इज NA इंटरसेक्शन B। सिमिलरली Q प्लस K इज B इंटरसेक्शन C, R प्लस K इज C intersection A और plus K, that means common in all three, A intersection B intersection C. Again a particular case, if A, B, C are disjoint sets, then number of elements in A union B union C is equal to NA plus NB plus NC. If A, B, C are disjoint sets, this means A, B, C have no common elements, that means A intersection B is equal to 5, B intersection C is equal to 5, C intersection A is equal to 5, और अगर दो सेट्स में ही कुछ कॉमन नहीं होगा तो A intersection B intersection C भी 5 होगा। और इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B 0 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C भी 0 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन A भी 0 होगा, और
A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सिंस एन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू एन A प्लस एन B प्लस एन C माइनस एन A इंटरसेक्शन B माइनस एन B इंटरसेक्शन C माइनस एन C इंटरसेक्शन A प्लस एन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये चार वैल्यूज जीरो हो जाएंगी और हमारे पास बचेगा Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो। दैट मीन्स Na प्लस Nb प्लस Nc। Now we take an example. In a survey of 25 students, survey 25 students का रहा है, that means number of elements in universal set is 20. It was found that 15 had taken mathematics. एक सेट को मैथमेटिक्स का ग्रुप मान लेते हैं और इसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं 15. 12 had taken फिजिक्स को सेकेंड सेट और इसमें स्टूडेंट हैं 12. 11 had taken केमिस्ट्री 11 students are taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry 5. 9 had taken mathematics and physics 9. 4 had taken physics and chemistry 4. And 3 had taken all the 3 subjects 3 maths physics chemistry में कॉमन है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम से इसे सॉल्व करते हैं और वेन डायग्राम में फिलिंग तीनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट से करते हैं। तो 3 एलिमेंट्स आर कॉमन इन मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4, तो 3 यहां हो चुके हैं प्लस 1, तो ये 4 कॉमन हो गए। मैथ्स एंड फिजिक्स 9, तो 3 हो चुके हैं 6 और मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5, तो 3 हो चुके हैं 2 ही। टोटल केमिस्ट्री में है 11, 3 3 6 प्लस 5 11, ये भी हो गया। फिजिक्स 10 12 2, मैथ्स 15 5 6 11 4, तो टोटल 15 5 20 3 23, टोटल 25 है, तो ये 23 प्लस 2 25 हो गए। यानी कि इसमें 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया है, कोई सब्जेक्ट नहीं लिया है। तो वेन डायग्राम के मेथड से ये फिल करने के बाद हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में 8 पार्ट है और इसमें पूछा है सबसे पहले ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली केमिस्ट्री का पार्ट है 5, दैट मीन्स 5। तो इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो ओनली केमिस्ट्री को, तो लिख सकते हैं केमिस्ट्री बट नाइदर इन मैथ्स नॉर इन फिजिक्स। मैथमेटिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओनली मैथ्स are 4, that means number of students in maths but not in chemistry, not in physics. Only physics 2, mathematically physics but not in mathematics, not in chemistry. Physics and chemistry but not in maths will be 1 और इसे रिप्रेजेंट करेंगे फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ्स। मैथ्स एंड फिजिक्स 9 बट नॉट इन केमिस्ट्री ओनली 6। मैथमेटिकली मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट
1 2 3 ये मैथ्स में है, ये फिजिक्स में है, ये केमिस्ट्री में है, तो ओनली वन सब्जेक्ट में आ गया 4 + 2 + 5 दैट मीन्स 6 और 5 11। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में ये सब ऐड कर देंगे, जिससे हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ पर इनको ऐड करके निकालेंगे। मैथ्स में 15 + 5 20 और 3 23। लास्ट पार्ट, none of the above subject will be number of elements in M union P union C whole race. That means number of elements in universal set minus number of elements in M union P union C is equal to 25 minus 23 is equal to 2.